Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Student, as you know that we have started a lesson Humanism, unit number 5, and we were discussing about the legend personality, that is Abd Sattar Edi, who is known as Angel of Mercy, who is called Angel of Mercy by people on his because of his contribution and accomplishments. Okay, so we are on page number 87 पे हैं हम. And what is the heading here? What shape Edi's life? आपको मैंने previous class में इसको recapitulate कर दिया था. And we have done reading till here. हमने जो है वो यहाँ तक अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी. होपफुली यू हैव लर्न के यू हैव ऑलरेडी लर्न कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था. उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. First I will read it and then I will explain you. Okay, so let's begin. He even started a funeral service which picked up human bodies found in the sea, in the rivers, in gutters, or at the roadside. He would even pick up these bodies himself when the family member refused to touch them. He would bring these bodies to Mitadar, wash them, and provide a proper burial service. So according to an observer of the Edi Foundation, the ambulance service and the funeral service provided Edi Foundation an excellent opportunity to grow all over Pakistan, since there was no other organization doing this, not even the government. An old associate of Edi said about him, Edi's self-transformation was for a social mission and not for himself. He changed his life for his mission. People do change, but mostly for themselves. Edi changed for others. Hence, no matter how insurmountable the difficulties and how challenging the times, and he never lost his positive attitude and confident outlook. Moreover, he made a commitment to himself that he would never give up anybody reason to challenge his integrity or his lifestyle, that he would never spend extra time or money on himself or his family. He had only 3 pairs of clothes, 1 pair of plastic chappal, 1 jinnah cap, and he slept on the wooden bench in his dispensary so that people could see how he was living. Abd Sattar Edi died on July 8, 2016 in Karachi, Pakistan due to kidney failure. The man is gone, but the mission will continue. His mission was to serve humanity regardless of religion, race and background. He adopted a lifestyle that would help him achieve this mission. It was this simplicity of life and this humanitarian vision which had been inculcated him by his parents, mainly his mother, that made him Abdul Sattar Edi, that he became the first common citizen of Pakistan in nearly 70 years of its history to receive a state funeral. So I am going to explain you. He even started a funeral service which picked up human bodies found in the sea, rivers, in gutters or at the roadside. अब जो इन्होंने ये जो उसका काम होता है, तदफीन का काम होता है, उसकी सर्विसेज भी इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू की. और स्पेशली किन लोगों के लिए जो बिल्कुल होमलेस होते हैं, उन लोगों के लिए. और कहाँ से ये ह्यूमन बॉडीज़ पिकअप करते थे? ये रोड्स पे से या रिवर्स में से या गटर्स में से या रोड साइड पे लोग अपने अपने जो लोग मर जाते हैं, जिनका कोई शेल्टर नहीं होता, घर नहीं होता, तो उनको दफनाते थे, उनको लेकर आते थे अपने फाउंडेशन में, अपने डिस्पेंसरी में, वहाँ उनको नहलाते थे, वॉश करते थे, एंड देन उनको जो है वो क्या कहते हैं दफनाया जाता था. ही वुड इवन पिक अप दीज बॉडीज़, और ख़ुद ये पिकअप करते थे उन बॉडीज़ को हिमसेल्फ, खुद ही. व्हेन द फैमिली मेम्बर रिफ्यूज़ टू टच दैम, बाज़ दफ़ा जो है ऐसे भी लोग को जिनके फैमिली मेम्बर्स उनको उनकी तदफीन करने से भी इनकार कर देते थे, उनको भी जो है वो ख़ुद ये क्या कहते हैं लेकर आते थे. ही वुड ब्रिंग दीज बॉडीज़ टू मीठादर, अपनी जगह पे जहाँ उनकी डिस्पेंसरी थी वहाँ लेकर आते थे मीठादर में. वॉश दैम, उनको नहलाते थे, एंड प्रोवाइड अ
प्रॉपर बरियल सर्विस, और उनको जो है पूरी तरीके से उनकी नमाज जनाजा और उनकी तदफीन वगैरह करते थे। अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर ऑफ द ईदी फाउंडेशन, द एम्बुलेंस सर्विस एंड द फ्यूनरल सर्विसेज प्रोवाइडेड ईदी फाउंडेशन एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो ऑल ओवर पाकिस्तान। अब जो इनकी जो दो ये काम थे, दो इनकी जो सर्विसेज थी, एक जो उन्होंने इनकी डिस्पेंसरी भी थी एज आई टोल्ड यू, लेकिन इनकी जो एम्बुलेंस सर्विस थी वो लोगों में बहुत फेमस हुई, और उनका जो फ्यूनरल सर्विस जो है, जो लोगों को तदफीन का काम जो करते थे, उनके लिए ये वाली जो है चीज़ ने इनकी जो फाउंडेशन था उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका दिया कि वो ग्रो कर गई ऑल ओवर पाकिस्तान, यानी इतनी फेमस हो गई कि लोग उनके इस काम की वजह से वो लोग उनको जानने लगे। सिंस देयर वाज नो अदर ऑर्गेनाइजेशन डूइंग दिस, नॉट इवन द गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो ये काम कर रही हो। इवन कि गवर्नमेंट भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को के उसके अंडर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी लोगों की को तदफीन करने की, बरियल सर्विस प्रोवाइड करने की। जो एन ओल्ड एसोसिएट ऑफ ईदी सेड अबाउट हिम, जो एसोसिएट है इसका यहाँ इसका मतलब क्या है? अ पर्सन who work with whom you work with or spend time, जो उनके साथ जिन्होंने वक्त गुजारा, यानी ईदी के साथ जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, उन्होंने में से किसी ने बताया, वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने टाइम स्पेंड किया था कि ईदी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ सोशल मिशन, नॉट फॉर हिमसेल्फ। अब देयर इज़ अ वर्ड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज कम्प्लीटली, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन? ये कैसे प्रोसेस होता है? दैट ट्रांसफॉर्मिंग वन सेल्फ, यानी अपने थॉट्स को, अपने एक्शन को, अपने बिहेवियर को चेंज कर देना, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने किसके लिए किया था ये चेंज जो लाए थे? वो किसके लिए लाए थे? वो सोशल मिशन के लिए लाए थे, अपना जो लोगों की खिदमत करने का मिशन था, चैरिटी वर्क का मिशन था, उसके लिए लाए थे, और नॉट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए नहीं था ये चेंज हिज लाइफ स्टाइल फॉर हिज मिशन। उन्होंने अपना पूरा लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली जो है वो क्या कर लिया था, के बिल्कुल चेंज कर लिया था अपने इस नोबल कॉज के लिए, अपने नोबल मिशन के लिए। पीपल डू चेंज बट मोस्टली फॉर देमसेल्फ। आपको पता है लोग अपने आप को अपने लिए चेंज करते हैं, ना कि जो है मोस्टली कि वो कि दूसरों के लिए नहीं चेंज होते, और मोस्टली फॉर देमसेल्फ। ईदी चेंज फॉर अदर्स, लेकिन ईदी जो है वो उन्होंने अपने आप को जो चेंज किया था, जो ट्रांसफॉर्म किया था, जो अपनी थॉट्स, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर को, एटीट्यूड को जो चेंज किया था, वो लोगों के लिए किया था। हैंस नो मैटर हाउ इंसमाउंटेबल द डिफ़िकल्टीज़। अब यहाँ देयर इज़ अ वर्ड इंसमाउंटेबल। इंसमाउंटेबल ये होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी ओवरकम, यानी टू ग्रेट टू ओवरकम, यानी जिस पे जो काबू ना आ सके, ऐसी मुश्किलात पे जो काबू ना आ सके। एंड हाउ चैलेंजिंग द टाइम, ऐसे इतना चैलेंजिंग टाइम था, इतना कड़ा वक्त था। ही नेवर हिज लॉस्ट हिज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंट हो, यानी कितना भी ऐसी मुश्किलात भी उनके सामने आई जिनके सामने हर इंसान जो है बेबस हो जाता है, और ऐसे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े, लेकिन एवरी टाइम उन्होंने कभी भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, मुस्बत रवैया और कॉन्फिडेंट, अपना एक जो आउटलुक होता है, यानी हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है लाइफ के बारे में, बहुत ही उनका कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल पुरएतमाद था, वो कभी भी नहीं छोड़ा। मोर ओवर ही मेड अ कमिटमेंट टू हिमसेल्फ, उन्होंने हमेशा अपने आप से एक इंगेजमेंट की, एक कमिटमेंट की, एक अहद किया दैट ही वुड नॉट गिव एनीबडी रीज़न टू चैलेंज हिज इंटीग्रिटी और हिज लाइफ स्टाइल, कि वो कभी भी अपने किसी भी को ये इस तरह का कोई मौका नहीं देंगे कि कोई उनकी आला अखलाक़ी इक़दार पे या आला अखलाक़ी उसूलों पे जो है वो क्या करे, उनको चैलेंज कर सके, या उनके लाइफ स्टाइल पे यानी कोई उनको कहते हैं चैलेंज कर सके कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन कि उनकी ज़ात जो है वो निशाना ना बने, वो ऐसे कोई काम ना करें जिसको लोग गलत तरीके से एसोसिएट करें। दैट ही वुड नेवर एक्स्ट्रा टाइम, इसी वजह से उन्होंने कभी भी एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं किया, वेस्ट नहीं किया। ही नेवर वेस्ट हिज टाइम और इवन नॉट हिज मनी ऑन हिमसेल्फ, अपनी ज़ात पे कभी भी खर्च नहीं किया, और ना ही अपनी फैमिली पे, क्योंकि वो एक रोल मॉडल बनना चाहते थे लोगों के लिए, ताकि उन लोग उनकी लाइफ स्टाइल पे या उनकी जो है शख्सियत पे कोई सवाल ना उठा सके। ही हैड ओनली 3 पेयर्स ऑफ, इनके पास जो है उनकी एसेस्ट में वो इनके पोजीशन में क्या क्या चीज़ें थी, उनके पास क्लोथ्स के
सिर्फ 3 पेयर्स थे, एक प्लास्टिक चप्पल थी, एंड देयर वाज अ जिना कैप, एक ही जिना कैप थी, एंड सी स्लेप्ट ऑन द वुडन बेंच। और किस पे सोते थे वो, एक लकड़ी के तख्त पे सोते थे, जो कहाँ था, नॉट इज एट हिज होम बल्कि अब डिस्पेंसरी में ही सोते थे, सो दैट पीपल कुड सी हाउ ही वाज लिविंग, ताकि लोग उनको उनके देख सके, एक एग्जाम्पल बन सके, एक एग्जाम्पल को सेट कर सके कि वो किस तरह रहते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी डाइड ऑन जुलाई 8, 2016 इन कराची, पाकिस्तान ड्यू टू किडनी फेलियर। अब्दुल सत्तार ईदी जो ये लेजेंड थे, ये कब इनका इंतकाल हो गया, ही पास्ड अवे ऑन जुलाई 8, 2016 में कराची में। एंड व्हाट वाज द रीज़न ऑफ हिज डेथ, इनका जो है द किडनी वाज फेल्ड, इनके किडनी फेलियर की वजह से इनकी डेथ हुई थी। द मैन इज़ गॉन बट द मिशन विल कंटिन्यू, ये चले, ही इज़ नो मोर विद अस, बट इनका जो मिशन है, इनका नोबल कॉज है, वो विल कैरी ऑन इंशाल्लाह। हिज मिशन वॉज टू सर्व द ह्यूमैनिटी, इनका मिशन क्या था, व्हाट वाज हिज मिशन, इनका मिशन था टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू हेल्प द सफरिंग पीपल, टू हेल्प द सफरिंग मैनकाइंड। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब क्या होता है, नॉट टू गिव इम्पोर्टेंस टू समथिंग, यानी इससे वो हो गया कि कौन सा रिलीजन है, रेस है, किस रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं या किस बैकग्राउंड से वो उनका ताल्लुक़ है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं था। ही अडॉप्टेड अ लाइफ स्टाइल, और उन्होंने एक ऐसा लाइफ स्टाइल इख्तियार किया, ऐसे लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया, दैट वुड हेल्प हिम अचीव दिस मिशन, जिससे उनको अपना इस नोबल कॉज को अचीव करने में जो है वो, इस गोल को अचीव करने में उनको आसानी हो। इट वॉज दिस सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड दिस ह्यूमैनिटेरियन विजन। अच्छा, उनके अंदर जो है वो दो ये चीज़ें जो थी, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ और लोगों की खिदमत करना, सादगी, ज़िंदगी के अंदर सादगी और लोगों की वेलफेयर के लिए चैरिटेबल वर्क का जो नज़रिया था, ये कहाँ से इनको मिला था, कहाँ से इनमें ग्रो हुआ था, विच हैड बीन इनकलकेटेड। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकलकेटेड स्टूडेंट, दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, एज इट व्हाट डज इट मीन्स, टू टीच एंड इम्प्रेस बाय फ्रीक्वेंट रिपीटिशन, यानी किसी चीज़ को जो है बार बार कह के जो है उसके अंदर डेवलप करना। और ये चीज़ किसने उनके अंदर डेवलप करी थी, उनके पेरेंट्स ने, और उसमें जो पेरेंट्स में भी उनका सबसे मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो उनकी मदर का था। दैट मेड हिम द अब्दुल सत्तार ईदी दैट ही बिकेम, जिसने उन्हें अब्दुल सत्तार ईदी बनाया, दैट ही बिकेम, जो वो बन गए, द फर्स्ट कॉमन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के पहले आम शहरी थे। इन नियरली 70 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, पाकिस्तान की तकरीबन 70 साल तारीख में, टू रिसीव अ स्टेट फ्यूनरल, जिनको जो है हुकूमती एजाज़ के साथ दफन किया गया। स्टेट फ्यूनरल का मतलब होता है अ बरियल विद ऑनर गिवन टू द हेड ऑफ अ स्टेट, यानी इनको हुकूमत की तरफ से जो है ये एजाज़ दिया गया था, उनको हुकूमत की तरफ से उनका जनाजे का एहतमाम किया गया था, उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी ऑनर के साथ जो है वो दफन किया गया था। इसके जनाजे में आपको एक और बात बता दूँगी, बहुत ज़्यादा बहुत फेमस पर्सनालिटी ने जो है वो इवन जो हमारे फ़ौजी और हुकूमत के आला अहदेदारों ने, हाई ऑफिशियल जो लोग थे, उन्होंने इनके जनाजे में शिरकत की थी और 21 तोबों की इनको सलामी भी दी गई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईदी एंड हाउ हु शेप्ड हिज लाइफ, क्या चीज़ उनकी लाइफ के लिए में हुई, क्या उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, कंट्रीब्यूशन था, लोग क्या किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की फलाह के लिए जो है वो लगा दिया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस द टेक्स्ट, and we are moving towards exercise. Open page number 91. We have exercise number 1 under the heading of reading comprehension. Exercise 1 is what? Read the text and answer the following questions by ticking the correct answer. आपको जो है रीड करना है और उसका करेक्ट आंसर को टिक करना है। द टेक्स्ट यू हैव ऑलरेडी रेड, और अब आप इसके क्वेश्चन के आंसर आसानी के साथ दे सकते हैं, बिकॉज द ऑप्शंस आर गिवन हियर। हु हैड द मोस्ट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग ईदीज़ लाइफ, किसने जो है वो, किसकी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी जिसने जो है वो ईदी की लाइफ में जो है वो चेंज और रेवोल्यूशन लेकर आया। हिज ग्रैंडफादर, हिज फादर, हिज मदर और हिज फ्रेंड। ऑब्वियस दैट इट इज़ ऑब्वियस एंड इट इज़ क्लियर दैट हिज मदर। ठीक है, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। वाई डिड ही चूज़ टू हेल्प पीपल इंस्टेड ऑफ अर्निंग मनी फॉर हिमसेल्फ, क्यों जो है वो उन्होंने इस चीज़ को, यानी टू हेल्प पीपल यानी लोगों की मदद करने को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी बनस्बत इसके कि वो पैसा कमाए। किसने जो है वो
क्यों किया था ना, हिज फादर क्यों किया, उनके फादर ने, हिज फादर टोल्ड हिम टू डू सो, या हिज मदर टॉट हिम टू बी काइंड एंड चैरिटेबल, या ही हैड अ लॉट ऑफ मनी सो ही डिड नॉट नीड टू वर्क, या फिर जो है द लास्ट ऑप्शन इज ही वॉज अ लेजी पर्सन. So what do you think students, कि which will be the correct answer? Yes, the option number B will be the correct because his mother taught him to be kind and charitable. So उनकी मदर ने इनको जो है वो उनकी पर्सनालिटी को शेप किया था, इनकी पर्सनालिटी को बिल्ड किया था. So this will be the correct answer. Okay students, this is your homework. I am showing you, read unit number 5 and look up the meanings of new words in the dictionary. आपको रीडिंग करनी है और जो आपको न्यू वर्ड्स हैं आपको उसके मीनिंग जो है वो फाइंड आउट करने हैं. होपफुली यू विल डू इट एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.